let's continue with the exercise. Correct. Till now we understood the concept of integration by parts. Today we are going to continue with the exercise, and let's go for question number 1. We have to integrate x sin x dx. Now see, this is simple formula based problem right now. Correct. There may be a difficult one, but I cannot say difficult one, but there will be a little bit improvised problem. We'll take care of it, but here a simple formula. Correct. So what I will do, I will consider this as a first and this as a second. Correct. In a product, so this will be my first and this is my second, or you can say this is u and this is v. How we went for this? With the help of ILATE. ILATE. Inverse log algebra, trigonometry and exponential. So I can say algebra came first, so I can easily do this. Simple. So let me take x common, integral of sin x dx. Not I can say common, but let's say as it is, integral sin x dx minus integral derivative of u, integral of v, curly bracket close, dx. Correct. So this term is always going to be a lengthier one, है ना. सबसे बड़ी लाइन होगी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में. So sin x का इंटीग्रल माइनस cos x माइनस x का डेरिवेटिव 1 sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, so this become plus dx. So minus x cos x plus sin x plus c. This is how we are supposed to solve. Very simple, straightforward, and we can do something like this. Integral of x sin 3x dx. Now the simple thing, instead of sin x it is sin 3x. So I don't think so कि हमें difficult लगता है कि sin 3x का इंटीग्रल क्या हो. So I will again go for this as first and this as second. So x as it is, integral of sin 3x dx, integral d by dx of x, integral sin 3x dx, curly bracket close, dx. It will be minus cos 3x by 3, है ना. जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको डेरिवेट करके डिनोमिनेटर में सेम थिंग, माइनस इंटीग्रल x का 1 माइनस माइनस प्लस cos 3x by 3 dx. So this will become minus x by 3 cos 3x प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा, एंड cos 3x का होता है sin 3x by 3 plus c. Now I know के आंसर आ गया, but I will go for one more step just to simplify this thing as 1 by 9 sin 3x plus c. Because without that there will be considered, it will be considered as a lacking of a final step. Correct. So we should not do something like this. If we get to know this is something like this, then we will definitely do it. Correct. So this is how we are supposed to solve this kind of a question. Simple. Chalo, let's go further with the question number 3, which is given integral x square e raised to x dx. Now just always think of ILATE. So e is the exponential, so this is going to be my second, so I will go first and second. X square as it is, integral of e raised to x dx, d by dx of x square, integral of e raised to x dx or dx. Now here the integral is very simple. चलो let's do the step, then I'll tell you कि क्या करना है. X square e raised to x minus integral, this will be 2x e raised to x dx. Simple. अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो I can easily take 2 common from the integral, है ना. ये इंटीग्रल में से 2 common ले लेंगे. So x square e raised to x minus 2. And again I will apply integration by parts u and v. So x integral of e raised to x dx minus d by dx of x into integral of e raised to x dx square bracket close. X square e raised to x minus 2 x e raised to x. Simple. माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रल ऑफ e raised to x dx. We can open the bracket as well as integrate it. So minus 2x e raised to x minus minus plus
2 times e raised to x plus c. Now, is there anything which we can balance? Yeah, one thing we can do is I can take e raised to x common. So x square minus 2x plus 2 plus c. Correct? So this is how we are supposed to solve this kind of a question. There is no difficulty at all. एकदम आराम से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. Let's go for the fourth one. I is equals to x log x dx. Now how are we supposed to solve this one? So I know that again I'll think of ILATE. So which comes first, algebraic or log? Obviously log. So I will say this is first one and now this is second one, because till now हमारा algebraic ही हमारा first आया था, because the other functions were after that, like trigonometry है या exponential है. Here log is before algebra, so we got this as first and that is second. So log x integral of x dx, d by dx of log x integral of x dx curly bracket close dx. Correct है ना, एकदम सिंपल. नाउ आई विल रब दिस मच लिटिल बिट क्या आप कर ही रहे तो पूरा ही कर लेते हैं, आधा अधूरा क्यों करें. Now how can we proceed further? So log x as it is, x का इंटीग्रल x square by 2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 upon x square by 2 dx. Log x into x square by 2, 1 x get cancelled, 1 by 2 common and I am left with integral of x dx again, है ना. And if I integrate it तो ये आएगा log x square by 2, 1 by 2 into x square by 2 plus c. But I told you कि हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा simplification करेंगे. That is minus x square by 4 plus c. See how the problems are very simple. They are not so lengthy and so difficult. Simple है. Very few problems are there जिसमें हमें substitution करने के बाद integration by parts करना होता है. So those kind of problems are little bit lengthy, not much lengthy, little bit as compared to the partial fraction. These are just nothing, है ना. Correct. चलो, let's go for the fifth one. Let's say x log 2x. Am I right? Yeah, correct. Now again same thing. Can I say something else for here? अरे कुछ नहीं कर सकता. I can't go for something else. This is 1 and this is 2. So log 2x as it is, integral of x dx minus d by dx of log 2x into integral of x dx और यहाँ पे dx. Am I right? है ना. ना फर्दर क्या करेंगे तो कि भाई log 2x तो एज इट इज है, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे पहले इंटीग्रल एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log 2x तो कि भाई 1 अपॉन 2x. log का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, लेकिन यहाँ पे 2x का वापस से करना पड़ेगा. सो इंटू 2 x का x स्क्वायर बाई 2 dx. सो एक 2 ये 2 कट, ये x कट. So I am left with log 2x into x square by 2 minus 1 by 2 outside x dx. Simple. So if you look at this one, it's somehow similar to the previous problem. That is the problem which I solved here. In simply log x की जगह पे log 2x है. So x की जगह पे x square by 2 and 2 2s are 4 plus c. Sometimes I will go directly like this. Now I don't need to show you 1 by 2 into x का इंटीग्रल x square by 2 every time. I can go something like this. है ना, इसमें इतनी कोई डिफिकल्टी हमें होनी चाहिए नहीं. सिंपल. चलो. Then let's go for the seventh one. I'll give you sixth as a homework. क्या है sixth में मैं लिख के दे देता हूँ. Let me write sixth here homework में. I equals to integral x square log x. Again this is going to be I. फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड फंक्शन. गो फॉर इट इन द सेम मैनर. बस आपको इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3 आएगा. यहाँ पे उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. अगेन एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स आएगा. सिंपली वापस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3. समहाउ इट विल कम अराउंड समथिंग लाइक दिस बट इन द क्यूब फॉर्म, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो वो क्यूब में आ जाएगा बिकॉज हियर इट इज एक्स स्क्वायर. सिंपल. चलो देन लेट्स गो फॉर द सेवेंथ वन.
व्हाट डू वी हैव इन द सेवेंथ वन? सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? x साइन इनवर्स x. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. सेवेंथ इज इंपॉर्टेंट. कैसे करेंगे? थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम होगा हमारे लिए. सो लेट्स बी लिटिल बिट केयरफुल एंड विल डू इट इन अ गुड वे. तो हमने सीखा है ILATE यानी कि I इनवर्स पहला. सो आई विल कंसिडर दिस फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो यूजिंग द फॉर्मूला इट विल बी साइन इनवर्स x एज इट इज x dx माइनस इंटीग्रल d by dx ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रल x dx कर्ली ब्रैकेट क्लोज dx. सिंपल. तो स्टार्टिंग में तो कोई इतनी डिफिकल्टी है नहीं. साइन इनवर्स x की वैल्यू x² 2 जो कब से लिखे ही जा रहे हैं. नाउ हियर इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स x? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x², x का इंटीग्रल x² 2 dx. Now how are we supposed to solve this particular integral? We don't have any kind of formula. करेक्ट. सो ध्यान से देखना. साइन इनवर्स x इंटू x² 2 माइनस 1/2 I1. मैंने क्या किया? इस इंटीग्रल को I1 बोल दिया. लेट मी राइट इट वंस, देन आई विल से I1 1/2 इंटीग्रल x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² dx. करेक्ट. सी यहां से करने के 2-3 तरीके हैं. एक तरीका ऐसा है जिसमें इस टॉपिक के बाद में पढ़ने वाली फॉर्मूला आती है. सो आई विल अवॉइड दैट राइट नाउ बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली कि वो फॉर्मूला हमें क्या है. सो आई विल अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस. साइन इनवर्स x इंटू x² 2 माइनस 1/2 इंटू I1 एंड आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, जहां पे I1 क्या है? इंटीग्रल x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² dx. दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो यहां पे क्या करेंगे? तो आई विल से लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा. क्या किया हमने? x की वैल्यू साइन थीटा ले ली. अगर x की वैल्यू साइन थीटा है तो थीटा कितना होगा? साइन इनवर्स x. ये ध्यान रखेंगे. प्लस इफ आई डिफरेंशिएट दिस तो ये आ जाएगा dx इक्वल्स टू कॉस थीटा डी थीटा. सीधी सी बात है. अब ये सारी चीजें जितनी समझ में आ रही है विल रिप्लेस एवरीथिंग इन द इंटीग्रल I1. पहला तो x² यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा. स्क्वायर रूट से बाहर आके कॉस थीटा. dx की जगह पे भी कॉस थीटा डी थीटा. सो आई कैन इजीली से कॉस थीटा गेट कैंसल्ड. अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे? तो वी डिड दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज एंड खास करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यूज किया. क्या करेंगे? cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. विद दिस आइडेंटिटी वी कैन कन्वर्ट साइन स्क्वायर थीटा, है ना. क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2. दैट आई विल रिप्लेस हियर. थोड़ा इंटीग्रल बड़ा बनाने के लिए रफ किया. 1 minus cos 2 theta divided by 2. Am I right? So with the help of this हमें यहाँ पे ये इंटीग्रल सॉल्व करना इजी रहेगा. क्या करेंगे? 1/2 बाहर, 1 का थीटा माइनस इसके लिए क्या लिखेंगे? cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? sin 2 थीटा by 2 प्लस लेट मी से C1 क्योंकि हमें कांस्टेंट तो देना ही पड़ेगा. करेक्ट. सो लेट मी से C1. इवन इफ आई से C इट डजंट मैटर क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने कोई कांस्टेंट दिया नहीं है. तो ये I1 रखेंगे तो C अपने आप आ जाएगा. नाउ आई हैव टू रिप्लेस और आई हैव टू बैक सब्स्टिट्यूट दिस, कन्वर्ट थीटा इनटू x, है ना. तो हमें क्या पता चल रहा है? 1/2 थीटा यानी कितना होगा? साइन इनवर्स x माइनस ये 2/2 2 4. अब देखो साइन 2 थीटा. अच्छा मैं इसको ना ऐसे लिखता हूँ. वेट, है ना. लेट मी गो फॉर वन मोर स्टेप क्योंकि थोड़ा सा आपको बताना है. सो लेट से 1/2 थीटा माइनस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस c. तो क्या है? 2 गेट कैंसल. करेक्ट. अब हम रख देंगे 1/2 थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह पे x और कॉस थीटा की जगह पे स्क्वायर रूट में 1 माइनस x² प्लस c.
और ये जो मिला वो I1। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I क्या होगा हमारा 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर सपोज टू बी डन। हाँ, मैंने जैसे कहा दो तरीके हैं। वन ऑफ द मेथड ये है कि आप यहाँ पे ना प्लस और -1 दे सकते हो, लेकिन उसको देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये माइनस अंदर लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव, है ना। तो एक फॉर्मूला जनरेट होती है, वो फॉर्मूला आती है रूट समथिंग लाइक दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा न्यूमरेटर में बनेगा। डिनोमिनेटर में हमें आता है, लेकिन न्यूमरेटर में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला हमें नहीं आती, जिसकी वजह से इस तरह की फॉर्मूला हम बाद में सीखने वाले हैं। एंड दैट इज वाई आई वेंट फॉर दिस मेथड, है ना। एक्चुअल में इसको जब फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। अब कैसे आता है वो हम बाद में सारी चीजें सीखेंगे कि फॉर्मूला किस तरह से रिलेट होती है कि भाई 1/2 इंटू ए एक्स इंटू रूट ऑफ दिस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई वगैरह ऐसे करके फॉर्मूला। सो थिंग इज कि हमें मिल वही रहा है ना। सो अभी अगर फॉर्मूला ना पता हो तब तक हम उसे थोड़ा अवॉइड करेंगे। एंड इट इज अ गुड थिंग कि जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ डिफरेंट वे टू गेट टू द आंसर, है ना। अदरवाइज हमें फॉर्मूला एक बार पता चल जाएगी तो आप क्या करोगे, माइनस अंदर दे दो, करेक्ट, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां बन जाएगा प्लस, एम आई राइट। तो +1 और -1 दे दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1 अपॉन ये। तो इजीली हम बैलेंस करेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह सब लगा के सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट टिल देन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इस तरह से इसको सॉल्व करो। और फॉर्मूला एक बार आ भी जाए फिर भी ये मेथड कोई इतनी लेंथी नहीं है ना। वो फॉर्मूला के लिए आपको स्टेप्स तो ऐड करने ही पड़ेंगे, स्टेप्स ऐड करोगे फिर फॉर्मूला लगाओगे। सो वो नियरली यहां तक तो आएगा, यहां तक। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 स्टेप्स, करेक्ट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, वेट, यहां पे 1/2 I1 करेंगे। सो विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ I1। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/4 and 1/4, correct. Now if you want you can go for one more step further than this. What you can do is you can simply take sin inverse x common, but it is not a necessary steps we have to do, and even if you want you can go for it, but yes, this is the final and correct answer, don't worry about that, है ना। एकदम परफेक्ट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, है ना। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने 1/2 I1 लिखा था और I1 की वैल्यू जब रिप्लेस कर रहे हैं तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये दोनों 1/4 हो जाएंगे। सिंपल। चलो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है, x tan इनवर्स x I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x tan इनवर्स x dx। सो यहां पे भी देखो इनवर्स वाला पहले है, मतलब इनवर्स फंक्शन है हमारे पास, तो आई विल कंसिडर दिस एज अ फर्स्ट एंड दिस एज अ सेकेंड फंक्शन। सो tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स x एंड इंटीग्रल ऑफ x dx करली ब्रैकेट क्लोज dx। एम आई राइट? इस तरह से हम प्रॉपरली लिखेंगे। अब आगे प्रोसीड करें तो tan इनवर्स x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन x का x स्क्वायर बाई 2 dx। सो यहां पे ध्यान से देखो तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जैसा बन गया है, बट दैट इज अनदर थिंग। हम भले पार्शियल फ्रैक्शन ना करें बट स्टिल, सो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में प्लस और -1 दे दिया, सिंपल। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/2 कॉमन, and this will become 1 minus 1 upon 1 plus x square dx. Simple. See, denominator little bit here and there हो रहा है, x square plus 1 1 plus x square, but it's the same thing. Addition है, commutative law valid होता है, correct. So tan inverse x into x square by 2 minus 1/2, 1 का integral x minus what will be the integral of 1 upon 1 plus x square? तो क्या भाई tan inverse x plus c. So you can simply write like this, x square by 2
tan inverse x minus x by 2 plus half tan inverse x plus c. Now as I told you here, if you want you can combine these two terms together. वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो. क्या करोगे तो कि it becomes x square plus 1 upon 2 tan inverse x minus x by 2 plus c. क्योंकि आपका ये दोनों टर्म में tan इनवर्स x तो कॉमन है, 2 कॉमन है, सो न्यूमरेटर में सिंपली ऐड होगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 2 एलसीएम में tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 प्लस c, है ना. सो नथिंग न्यू एंड नथिंग डिफिकल्ट इज कमिंग टुवर्ड्स अस इन दिस पर्टिकुलर मेथड. दिस मेथड इज वेरी वेरी सिंपल एंड आई होप दैट यू पीपल आर गेटिंग इट इन अ वेरी गुड वे. करेक्ट. चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. इज I equals to x cos inverse x dx. Again, just like the 7th one, this is important. Correct? Like 7th one. 8th one में हमें यहाँ पे इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई. प्लस और माइनस वन में हमने सिंपली एडजस्ट कर लिया. So we don't need to go for any kind of substitution. But here we may have to. This is first and this is second function. Cos inverse x integral of x dx. d by dx of cos inverse x integral of x dx curly bracket close dx cos inverse x. ये हो जाएगा x square by 2. This will be minus 1 upon square root of 1 minus x square और ये हो जाएगा x square by 2 dx. So kind of similarly पूरा मिला है ना जैसे साइन इनवर्स में था. If I take negative outside, this becomes something like this: cos inverse x x square by 2 plus 1 by 2 x square divided by 1 minus x square dx. Same है, similar है. But here, see, in that particular one we have substitute something like this as sin theta. But यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे. ध्यान से देखना. cos inverse x into x square by 2 plus 1 by 2 I1 and let me call it 1. जहां पे I1 क्या है? x square upon square root of 1 minus x square dx. Now see, आप चाहो तो यहाँ पे भी x की जगह पे sin थीटा ले सकते हो. But if you take x equals to sin थीटा तो आपका आंसर जो है वो पूरा sin इनवर्स वगैरह में जाएगा. And we have cos inverse present over here. That is why what I am going to do is I am going to let x equals to cos theta, यानी कि थीटा हो जाएगा cos inverse x. If you want you can go for sin inverse, no problem. ध्यान से सुनना. आप sin inverse लोगे यानी कि थीटा x की वैल्यू sin थीटा लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंपल. So cos inverse x आया यानी कि dx आएगा माइनस sin थीटा d थीटा. cos का डेरिवेटिव तो नेगेटिव आता है ना, माइनस साइन थीटा डी थीटा. अब ये सारी वैल्यू हम करेंगे रिप्लेस. कहां पे? इन इंटीग्रल I1, है ना. और फिर उस पे से जो वैल्यू मिलेगी वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में. सो माई I1 विल बिकम एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और इंटीग्रल है माइनस, ये आपके dx की वैल्यू है माइनस साइन थीटा डी थीटा. So sin theta got cancelled. Minus cos square theta यानी कि 1 plus cos 2 theta by 2 d theta. जिन्हें याद नहीं है वापस से याद दिला दूं. cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. तो minus 1 इधर ले लो plus and divide by 2. Simple. So minus 1 by 2 outside. 1 का इंटीग्रल थीटा, cos का इंटीग्रल तो वो तो प्लस होगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी. सो माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन की जगह पे होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी. अब यहाँ पे ये 2 कट और बाहर 1 by 2 है. लेट मी पुट इट लाइक दिस. करेक्ट. ये 1 by 2 दिया ना. थीटा कैन बी कॉस इनवर्स एक्स. सो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस cos थीटा हो जाएगा x, sin थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c. ये हमें मिला I1. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? विल सब्स्टिट्यूट दिस वन. सो I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x. अब यहां पे देखो प्लस है तो ध्यान से देखना. प्लस माइनस माइनस 1 by 4 cos इनवर्स x
प्लस माइनस माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब मैं c/2 लिखूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो तो आपको c डैश कर दो, 1/2 c लिख के 1/2 c डैश लिख के उसको c में कन्वर्ट कर लेना, करेक्ट। चलो अब क्या करेंगे, तो आई नो कि मैंने 7th में आपको एक सिंप्लीफिकेशन लास्ट स्टेप नहीं करवाया था, आई डिड इन द 8th वन, लेट्स डू इट हियर ऑल्सो। सो इफ आई टेक cos इनवर्स x कॉमन और 4 भी साथ में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम आर सपोज टू सॉल्व, है ना। डिफिकल्ट नहीं है, बट आई वोंट से कि एकदम इजीली हो जाएगा। वी नीड अ प्रैक्टिस, वी नीड टू सॉल्व 1 टाइम ट्वाइस एंड वी नीड टू सॉल्व अ फ्यू बिट ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, करेक्ट। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल डेफिनेटली हेल्प्स अस। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10. What it is given, integral of sin inverse x square dx. Now again here you can go with two ways. First, you can just simply think like this कि ये आपका फर्स्ट टर्म होगा and multiply by 1 will be your second term, correct. और second method is you can let के भाई चलो sin inverse x is theta, correct. So I prefer कि ये let करके करने वाला है ना थोड़ा ज्यादा बेटर होता है कि let sin inverse x is equals to theta. So x equals to sin theta, यानी कि dx आएगा sin theta का डेरिवेटिव cos theta d theta. सिंपल। एंड इफ आई रिप्लेस ओवर हियर तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर, और dx की जगह पे cos थीटा d थीटा। नाउ दिस मेक्स आवर प्रॉब्लम वेरी वेरी इजी। देखो x स्क्वायर cos थीटा dx और x स्क्वायर cos x dx, बस उसकी जगह पे थीटा है। सो एल्जेब्रिक विल कम फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री विल कम सेकंड। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सो क्या करोगे, बाय पार्ट्स, थीटा स्क्वायर इंटीग्रल cos थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रल d बाई डी थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर इंटीग्रल cos थीटा d थीटा कर्ली ब्रैकेट d थीटा। सो थीटा स्क्वायर एज इट इज cos थीटा का इंटीग्रल होता है प्लस sin थीटा माइनस दिस इज 2 थीटा और cos थीटा का sin थीटा d थीटा। अगेन यहाँ पे लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, क्या लगेगा थीटा इंटीग्रल्स ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल में डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, ये कर्ली ब्रैकेट आएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा एंड डी थीटा, करेक्ट। थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स थीटा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा डी थीटा, करेक्ट। अभी भी हम कांस्टेंट नहीं देते, लेट्स वेट इट फॉर दिस लास्ट इंटीग्रल। थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस, क्योंकि कॉस का इंटीग्रल प्लस आना है, साइन आएगा मतलब कि माइनस 2 इंटीग्रल विल बी साइन थीटा प्लस सी। अब देखो यहां तक आने के बाद आप अगर इसको यहाँ छोड़ दोगे ना, दैट इज वेरी मच रॉन्ग। क्यों? बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन था x में, ये है थीटा में, आई हैव टू कन्वर्ट दिस लाइक साइन थीटा की वैल्यू x, तो cos थीटा की वैल्यू रूट में x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू साइन थीटा का x प्लस 2 साइन इनवर्स x, क्योंकि थीटा की जगह पे मैं साइन इनवर्स x रखूंगा, और cos थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। दिस शुड बी अवर आंसर, है ना। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये x x कॉमन है और मुझे निकालना है, तो आप निकाल सकते हो, बट हियर आई वोंट गो फॉर दैट एट ऑल, क्योंकि ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। लेट्स कीप इट सेपरेट, उन्हें अलग से ही रखते हैं, है ना, सो दैट वी डोंट गेट एनी हाउ कंफ्यूज्ड के जिससे हमें आंसर में मिस्टेक लगे। ये पहला तरीका, एक्चुअली ये मैंने सेकंड बोला, पहली मेथड मैंने ऐसे कही कि आप इसको खुद को u ले लो, यानी कि कंसिडर समथिंग लाइक दिस, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इनटू 1 dx। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड।
तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल में d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर. सो ये भी कोई इतना सिंपल नहीं होना है, इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx विद dx. करेक्ट. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर 1 का इंटीग्रल x. आया पहला टर्म. माइनस है भले यहाँ पे, लेकिन इतनी हड़बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और 1 का इंटीग्रल x है वो भी आएगा. तो लेट मी राइट x dx. करेक्ट. अब यहां पे आपको वापस से लेट तो करना पड़ेगा ही, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी फील होगी. क्यों? क्योंकि आप अगर यहां पे फिर ऐसा सोचोगे कि मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, आप कर सकते हो. आपको u लेना पड़ेगा साइन इनवर्स x और v लेना पड़ेगा 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये कंसिडर करके सॉल्व करना पड़ेगा. बट इफ यू रिमेम्बर तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको यही पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना सिखाया और उसमें मैंने आपको कहा था कि लेट करो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, बिकॉज दैट इज मच इजियर फॉर अस टू सॉल्व रादर देन गोइंग फॉर दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट u and v लाइक दिस. उसमें भी होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट c, बट आफ्टर सब्सटीट्यूशन यू विल कन्वर्ट इट इनटू थीटा साइन थीटा डी थीटा. जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना थीटा स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, वैसे यहाँ पे कन्वर्ट होगा. सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस ओनली. तो यही आपका आंसर आना है बाय दिस मेथड ऑल्सो. एम आई क्लियर है ना? सो अननेसेसरीली हम, मतलब मैं नहीं चाहता कि आपको मैं दोनों मेथड में से कोई एक पे फोर्स करूं. दैट इज वाई आई डिड दिस मच फुल, है ना? और ये मैंने यहां तक बता दिया. इसके बाद आप अगर चाहो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हो, है ना? या फिर यहां से भी आप चाहो तो इस इंटीग्रल को I1 बोल दो और उसके लिए लेट करो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा एंड गो फॉर इट. अब उधर से करना ही हो तो यहीं से करके ना खत्म कर दे. व्हाई शुड वी अननेसेसरली बॉदर अबाउट इट के यहां से क्या होगा वहां से क्या होगा एंड समथिंग लाइक दैट. एम आई क्लियर? सो अननेसेसरली हम इसमें कोई इतना बर्डन क्रिएट नहीं करेंगे. यू जस्ट अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम. आपको जो कंफर्टेबल लगे यू शुड गो फॉर दैट. करेक्ट. फिलहाल विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 11. उसमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, है ना? व्हाट डू वी हैव? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज सिमिलर टू दिस वन, बस इंस्टेड ऑफ साइन कॉस है. I इक्वल्स टू x cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. मतलब वो x भी नहीं है बट स्टिल, ओ सॉरी x है 2 नहीं है बट फिर भी सिंपल सा प्रॉब्लम. अच्छा हाँ, यहाँ पे भी आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल के सिर्फ x अपन वाला रख सकते हो. आई डोंट माइंड. करेक्ट. फिलहाल यहाँ क्या करेंगे तो मैंने जैसे वहां पे बोला साइन इनवर्स लेट करते, यहाँ पे cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो x की वैल्यू cos थीटा, तो dx कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा. तो I विल बिकम x की जगह पे cos थीटा. अच्छा एक काम करते हैं, लेट मी डू समथिंग लाइक दिस. ये थोड़ा अलग डायरेक्शन में चलेगा बट चलता है, इससे भी वही आता है आंसर. बट cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू डी थीटा. तो क्या हमारा इंटीग्रल सिंपल हो जाए ना. तो x की जगह पे cos थीटा, cos इनवर्स x की जगह पे थीटा और dx यानी कि ये पूरे के लिए माइनस डी थीटा, बिकॉज वी डोंट हैव नेगेटिव हियर. यहाँ पे नेगेटिव आया है. टेक नेगेटिव आउटसाइड तो इट बिकम्स थीटा cos थीटा डी थीटा. क्या करोगे? ILATE फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, है ना? माइनस स्क्वायर ब्रैकेट थीटा एज इट इज इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल में डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा कर्ली ब्रैकेट क्लोज डी थीटा एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस थीटा एज इट इज cos का इंटीग्रल sin थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ sin थीटा डी थीटा. क्यों? थीटा का तो डेरिवेटिव 1 ही होना है. इज इक्वल्स टू माइनस थीटा sin थीटा माइनस माइनस प्लस और sin थीटा का इंटीग्रल माइनस cos थीटा प्लस c. अब ये जो सारा हमारे पास थीटा इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ थीटा अवेलेबल है उसमें से बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड विल ट्राई टू गेट टू अवर आंसर.
सो बैक सब्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिलेगा, तो कि भाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स, साइन थीटा की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा की जगह पे x प्लस सी। आई गेस ये स्टेप में यही लिख देता तो भी हो जाता, क्यों, है ना, लिख लेते हैं। चलो क्या होगा, माइनस थीटा यानी कॉस इनवर्स एक्स, साइन थीटा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा यानी कि माइनस एक्स प्लस सी। क्यों वहां लिख दिया, तो कि यहाँ हम चाहे तो नेक्स्ट सम स्टार्ट कर सकते हैं ना, विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व। आर यू गेटिंग मी? प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नहीं है, अंडरस्टैंड करो। आप चाहो तो इसमें भी वो सेकेंड मेथड की तरह कर सकते हो कि भाई कॉस इनवर्स एक्स को यू ले लो यानी कि फर्स्ट फंक्शन, और x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप सेकेंड फंक्शन ले लो, एंड देन यू कैन गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दैट्स हाउ ऑल्सो यू कैन डू, but this is how also we can do. So I prefer this method is much better than the next one. I prefer, you prefer is depending on you, how your thought process is working, how you are feeling that for particular problem कि हाँ मेरे लिए ये ज्यादा easy रहेगा. So it is totally up to you. हम मेरे लिए for my point of view this is much easier than the another one. Correct? So let's go for 12th one. I equals to integral x into sec square x dx. Now again if you observe algebra and trigonometry, so algebra में first, trigonometry में second. So x as it is, integral of sec square x dx minus integral d by dx of x integral sec square x dx curly bracket close dx. सिंपल। अब हमें पता है सबको x sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या आता है, 10x. सो x इंटू 10x माइनस ये 1 हो जाएगा, और sec स्क्वायर x का वापस से 10x dx. अरे अब 10x का इंटीग्रल याद है कि भूल गए? याद होना ही चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। x इंटू 10x माइनस, नहीं याद आता है तो मैं आपको तरीका याद दिलाने का सिखाता हूँ। तो 10 यानी साइन बाय कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, है ना, तो ऊपर तो सिंपली साइन है, या साइन बाय कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, करेक्ट। तो ऊपर तो सिंपली साइन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डी थीटा देना पड़ेगा, या तो टी, जो भी बोला, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना, तो मैंने लेट किया क्या, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आप जब इसको इंटीग्रल में रखोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी आएगा, और ये अपॉन टी होगा। सो 1 अपॉन टी होता है तो लॉग टी, और टी की वैल्यू कॉस है, तो माइनस लॉग कॉस, तो माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड्यूलस में कॉस एक्स प्लस सी। अब अगर आप बुक के पीछे शायद आंसर देखो और आपको देख के ऐसा लगे कि अरे ये तो कॉस नहीं है, यहाँ पे तो सेक दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर आप सेक के फॉर्म में लिखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, x 10x माइनस लॉग मॉड्यूलस में सेक एक्स प्लस सी। एक्चुअल में यहाँ नेगेटिव है, तो जब मैं लॉग कॉस लिखता हूं तो नेगेटिव लॉग कॉस आता है, इसलिए वो पॉजिटिव हो गया, और जब सेक में लिखते तो वो पॉजिटिव ही होता है, लॉग सेक एक्स, तो उसकी वजह से नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा। सो ये दोनों में से कोई भी आंसर हमारे लिए बुक के पीछे दिया हुआ हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो डोंट वरी, अब शायद आप टेंशन में आ जाओ कि सर हमारे बुक में पीछे आंसर तो कॉस एक्स में नहीं दिया हुआ है, सेक एक्स में दिया है, और आपका आंसर तो कॉस एक्स में आया है। अरे तो कोई बात नहीं ना, हमें पता है फॉर्मूला लॉग कॉस एक्स कहाँ से आया, लॉग सेक एक्स कैसे आएगा, वी नो दैट, सो दैट्स ओके। बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है सेक एक्स और कॉस एक्स का व्हाइल यू आर सॉल्विंग फॉर एमसीक्यू, क्योंकि जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अगर आता है ये वाला और क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन दिया होता है ये, तो हमें ये मिलता है तो हम बोल देते कि आंसर डी वाला नॉट पॉसिबल। दैट्स वेयर वी कमिट अ मिस्टेक, क्योंकि देयर मे बी चांसेस कि उन्होंने कुछ चेंजेस करके दिया हो, या कुछ सिंप्लीफाइड, या कुछ इन इनोवेटिव वे में पूछा हो कि भाई इसकी जगह पे कुछ चेंजेस करके दूसरा सोचना चाहिए आपको, ऐसा। तो दैट्स वेयर वी लैक सम टाइम, तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हमें सारी फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए, दैट इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू, बट रादर देन दैट बाय हार्टिंग दोनों में ध्यान रखो, वो मैं आपके लिए ज्यादा प्रीफर करूंगा, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व, सिंपल। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13. I equals to integral tan inverse x dx.
Now again, this is similar to the problem which we solved like integral of log x dx. In the log x, only log function is there, so we have considered that as first function and 1 as the second. Same thing we'll do here. We'll say tan inverse x into 1 dx. So this is first and this is second. So tan inverse x as it is, integral of 1 dx, d by dx of tan inverse x, integral of 1 dx into dx in the curly bracket of dx. Now tan inverse x तो as it is रहेगा, 1 का इंटीग्रल x माइनस डेरिवेटिव विल बी 1 upon 1 plus x square into x dx. Now from here how can we proceed? So I am getting x tan inverse x minus. So if you observe तो कि मैं यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर सेट कर सकता हूँ. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट. And when I set the derivative something like this, so what I'm going to do, I'm going to let 1 plus x square equals to t. करेक्ट, एक ही इंटीग्रल है, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है. Now derivative of this will be 2x dx equals to dt. So this will become x tan inverse x minus 1 by 2 times integral of dt by t. So क्या आ जाएगा, x tan inverse x minus 1 by 2 log modulus of t plus c, and simply put the value of t. That's it, problem done. x tan inverse x minus 1 by 2 log t की जगह पे 1 plus x square plus c, है ना. आई टोल्ड यू दिस इज जस्ट सिमिलर टू द प्रॉब्लम ऑफ लॉग. लॉग में हमने इसी तरह से देखा था कि log x इंटू 1 कंसिडर किया था और u और v फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड किया था. सेम थिंग वी आर सपोज टू डू हियर, करेक्ट. अब यहाँ पे आप इस तरह इसको जो देख रहे हो, इफ यू वांट यू कैन से इट इंटीग्रल 1 I1 एंड देन गो फॉर इट इन द सेपरेट वे. इट डजंट मैटर, इट्स सेम थिंग एंड सिंपल थिंग, करेक्ट. लेट मी शो यू 14th one. Can you do this 14th homework? Let me write a question for you. Integral of x into log x का whole square dx. So definitely I will consider log x whole square as u. Why? Because logarithmic function comes first rather than real number. So what I will do, log x whole square into integral x dx minus integral d by dx of log x का whole square integral of x dx or dx, correct. So this will be log x whole square, x square by 2. Now pay attention here, integral log x का होगा 2 log x और log x का 1 upon x into x का x square by 2 dx, है ना. So this 2 get cancel, x get cancel, and I am left with log x whole square into x square by 2 minus integral of x log x dx. I guess we did today, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ x log x dx. तो यहां से मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, डू योर सेल्फ, करेक्ट. अगेन वही सेम थिंग, कंसिडर दिस एज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज सेकेंड. Using integration by parts, you can proceed in this particular problem just like we did in the question number 4. I am very much confident कि मैंने आपको वो होमवर्क में तो नहीं दिया होगा, है ना. And if I recall, तो मैंने आज ज्यादा होमवर्क दिया नहीं है. I guess one of the problem only I give you to do at your home, and this is half. इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना. Am I right? चलो, let's go for question number 15. क्या दिया हुआ है, I equals to integral x square plus 1 log x dx. अब ये कैसे करेंगे, तो कि ये भी सिमिलर है टू द प्रॉब्लम विच आई गेव यू एज होमवर्क. कैसे, तो कि इफ आई स्प्लिट देम अप तो इट विल बिकम x square log x dx plus integral of log x dx. ये 6th क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल है जो हमने किया था इन द प्रीवियस क्लास. सो दोनों को सॉल्व करना है. इफ यू वांट यू कैन कॉल इट I1 एंड I2. चलो पहले I1 सॉल्व करते हैं. इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर log x dx. सो डेफिनेटली ये फर्स्ट, ये सेकंड. log x एज इट इज, x स्क्वायर का इंटीग्रल
माइनस इंटीग्रल में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रल एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स और करली ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। तो लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स। एक्स एक्स गेट कैंसल्ड, स्क्वायर आएगा, है ना। मैंने कहा था ये कुछ इसी तरह से होता है। तो इफ आई एम सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर I1, दैट मीन्स के क्वेश्चन नंबर 6 अब होमवर्क नहीं रहा, यू कैन कॉपी दिस इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। माइनस 1/3 कॉमन, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, let me write C1 because we have two integrals, so I will be taking care of that thing. So log x into x cube by 3 minus x cube by 9 plus C1 equation number 2, this will be equation number 1. और फिर दूसरा क्या करेंगे, log x सॉल्व करेंगे, करेक्ट। एंड इफ आई सॉल्व log x तो कैसे करना है, तो उसके लिए बोल देंगे फिलहाल I2 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ log x dx। तो log आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ 1 dx इंटू dx। log x एज इट इज 1 का x माइनस 1 अपॉन x इंटू x। तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स और माइनस 1 का x प्लस C2। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1 I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I क्या हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू एज इट इज रख दो, कोई चेंजेस नहीं। log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस I2 log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस C1 प्लस C2, जिसके लिए हम C2 लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। तो x क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस x log x माइनस x प्लस C, वेर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, है कि नहीं। ये प्रॉब्लम लेंथी इसीलिए लिटिल बिट हो गया बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सो वी कन्वर्टेड इनटू 2 सेपरेट इंटीग्रल एंड दैट इज व्हाई इट्स गॉट लिटिल बिट लेंथियर, क्योंकि हमें 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने थे और उनका सम करके आंसर लिखना था, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एम आई क्लियर? नाउ in this particular exercise till here all the problems are of integral by parts. Now the next section which is from question number 16 we are going to understand of the type जो हमने in the previous class समझी थी, integral e raised to x f of x plus f dash x dx is equals to e raised to x f of x dx, correct. So before we start for that particular problem you can pause the video and note it down. Now let's go for question number 16, correct. As I told you, now few problems are based on that particular formula जो हमने last class में देखी थी. It is given I equals to e raised to x sin x plus cos x dx. Now that particular formula was something like this: integral e raised to x f of x plus f dash x dx is equals to e raised to f of x plus c. So how are we going to solve this kind of a problem? That is very very crucial. And I told you in the last class also कि ये टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादातर MCQ में प्रीफर होते हैं because they are short, correct, and very simple to do. तो I can write something like this: integral e raised to x sin x and cos x is the derivative of sin x, correct. तो आई गेस ये फॉर्मूला सेट हो गई, देयरफॉर आई कैन से आई इज इक्वल्स टू, करेक्ट, इंटीग्रल हमारा सॉल्व हो गया है ना। सो सॉल्व हो गया इन द सेंस कि एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स रेडी हो गया, तो आई कैन इजीली से इट बिकम्स e रेज़ टू x sin x प्लस c, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ और सॉल्व करने की जरूरत है। एम आई क्लियर? सो e रेज़ टू x sin x cos x, तो sin का डेरिवेटिव तो cos होता है, तो आई रोट d by dx ऑफ sin x विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, करेक्ट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज गिवन x e raised to x divided by 1 plus x whole square
into dx definitely. Now this kind of questions are important. क्यों? रीजन सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे यहाँ पे आपको बाजू में डेरिवेटिव दिख गया वैसा यहाँ पे इजीली आपको दिख नहीं रहा, करेक्ट. अब हाउ यू विल थिंक कि भाई यहाँ पे हमें इसी टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करना है, बिकॉज व्हेनेवर वी हैव e रेज टू x विल थिंक ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन. अगर सब्स्टिट्यूशन सेट नहीं होता है देन विल गो फॉर दिस मेथड, है ना. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. So what I am going to do over here is, as I can see 1 plus x, तो न्यूमरेटर में +1 और -1 दे दिया into e raised to x dx. And if I take reverse LCM, तो it will become 1 upon 1 plus x minus 1 upon 1 plus x का whole square dx. Correct. Now if you think what will be the derivative of this function over here, तो यू मे बी लिटिल बिट कंफ्यूज कि यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से तो प्लस है नहीं, करेक्ट. सो व्हाट आई विल डू कि आई विल जस्ट सिंपली डू दिस थिंग के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. सो इफ आई स्टार्ट डूइंग इट, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. क्या करेंगे, न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1. सो आई गॉट -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, करेक्ट. तो इसे हम लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना. आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, e रेज टू x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, जो इवेंचुअली आई विल कन्वर्ट लाइक दिस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx. So by that particular type of integral it becomes e raised to x into 1 upon 1 plus x plus c. If you want you can go for one more step, something like this. If you don't, it's okay. ये final answer है, चलेगा. It's just simply ऐसे divide में लिखा. Are you getting me? So this is how we are supposed to solve this kind of questions. हाँ, ये मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा आपको steps में बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. If you understand from here to here directly कि हाँ इसका डेरिवेटिव ये है ना. Now not every time ऐसा पॉसिबल हो कि पहली टर्म का डेरिवेटिव इधर हो. Sometimes इधर का डेरिवेटिव इधर हो सकता है, तो we'll rearrange them, है ना. एडिशन में ही होता है, सो वी कैन रीअरेंज देम, सो डोंट वरी अबाउट दैट, करेक्ट. चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. ये था 16 और 17. अब बात करते हैं 18. क्या दिया हुआ है, e रेज टू x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. नाउ दिस इज अगेन सिमिलर, इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन काम नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन के लिए सोचो, चलो मैंने cos x ले लिया, तो क्या भाई cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, मान लेते हैं, लेकिन ऊपर 1 प्लस है, सो पॉसिबल नहीं. साइन लेने का तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि cos नीचे है, तो वो तो कभी एडजस्ट होना नहीं है. या ऐसा भी नहीं कि 1 प्लस cos x ले ले, कुछ ऊपर एडजस्ट हो जाए, e रेज टू x करे, नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से सोचना होगा कि जहां पे हम इन्हें इस तरह से कन्वर्ट करें कि f ऑफ x प्लस f डैश x जनरेट हो. तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना. e रेज टू x एज इट इज, कैन आई राइट लाइक दिस 1 प्लस 2 sin x by 2 into cos x by 2. I have converted this sin x into हाफ एंगल, करेक्ट. वैसे तो 1 प्लस cos x को भी तो कर सकते हैं ना. क्या करेंगे, 2 cos square x by 2 dx. क्या किया, 2 cos square x by 2 dx. अब ध्यान से रिवर्स एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि हम उन्हें स्प्लिट कर देते हैं. सो e रेज टू x 1 अपॉन 2 cos square x का हो जाएगा sec square x by 2 प्लस 2 कट, एक एक cos कट, sin x by 2 अपॉन cos x by 2 यानी कि tan x by 2 dx. लेकिन ये करने से भी फायदा क्या, अच्छा हाँ, tan का डेरिवेटिव sec square आता है, करेक्ट. सो इफ आई से डेरिवेटिव ऑफ tan x by 2, तो क्या आएगा, तो कि tan का डेरिवेटिव होता है sec square x by 2 और चेन रूल के हिसाब से x by 2 का 1 by 2, है ना. तो ये तो सेट हो गया. मतलब हम क्या करेंगे, e रेज टू x tan x by 2 प्लस 1 अपॉन 2 sec square x by 2 dx. जो ये जो है वो हमारे डेरिवेटिव ऑफ tan x है.
सो ई रेस टू एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, तो आंसर आएगा ई रेस टू एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू प्लस सी। सीधी सी बात है ना, और कुछ ज्यादा तो ऐसे भी सोचने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा हो तो फिर क्यों अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, है ना। बट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट टू बिगिन। ये सारी चीजें नहीं रिकॉल होगी तो फिर ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, करेक्ट। सो समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट कि हमें बिगिन करने आना चाहिए, बाकी हो जाएगा। आई टोल्ड यू इन मैनी दिस थिंग मैनी टाइम्स, करेक्ट। सो यू पीपल शुड टेक केयर ऑफ दैट। लेट्स गो फॉर 19। Actually 19 is way too much simpler than you think. 1 minus x upon 1 minus x square dx. Now मुझे पता है, देखो 1 upon x का डेरिवेटिव 1 upon x square माइनस में होता है, फिर भी I will say let's just simply derivate it। क्या करेंगे कि भाई d by dx of 1 by x क्या आता है, तो कि it is minus 1 upon x square। So I equals to integral of this 1 upon x plus minus 1 upon एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो बन जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, जिससे आइडेंटिटी या फॉर्मूला का यूज करके ये होगा ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। क्योंकि ई रेस टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी लिखो तो इवेंचुअली होना यही है। देयर इज नॉट गोइंग टू बी मच ऑफ अ चेंज, सिंपल। चलो देन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 20, है ना। आई गेस एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आज ही हमारी, है ना। लेट्स से 20 क्या दिया हुआ है। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का क्यूब और ये dx। नाउ मैं ये ऐसे प्रॉब्लम्स को इस मेथड में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं जिनमें हमें डायरेक्टली ना दिखे। जैसे इसमें डायरेक्ट दिख गया सो जल्दी खत्म हो गई। 2 प्रॉब्लम्स मैंने इंपॉर्टेंट टिक कर रहा है जिसमें हमें डायरेक्टली नहीं दिखता, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी। नीचे x माइनस 1 है, एक प्रॉब्लम में x प्लस 1 था तो हमने प्लस माइनस 1 किया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस 1 माइनस 2 ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब dx। ई रेस टू एक्स आगे ले लेता हूँ, रिवर्स एलसीएम करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब dx। अब देखो, देखने में तो पता चल जाना चाहिए क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब होता है। तो वही यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर। ऊपर ले जाओ तो माइनस 2 होता है, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब, सो इट विल बी माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब। तो वो ये माइनस अंदर दे देंगे, सो माई इंटीग्रल विल बिकम ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब इंटू dx। तो हो गया ना सेट, करेक्ट। आई नो कि हम फ्यू स्टेप्स लिखते हैं, बट वो स्टेप्स इसीलिए मैं लिखवाता हूँ बिकॉज इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा कुछ उसमें है नहीं, है ना। सो ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर dx। एक और ब्रैकेट आएगा, सो आंसर इज ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी। सीधी सी बात है ना, करेक्ट। सो दीज आर द 5 प्रॉब्लम्स जो हमारी ये टाइप पे डिपेंड है, करेक्ट। देर आर 1 और 2 मोर प्रॉब्लम्स जो इस टाइप पे नहीं है लेकिन हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ई रेस टू 2x sin x dx। और अगर आपको याद हो ना तो मैंने ये वाला आपको एज अ फॉर्मूला के लिए होमवर्क में दिया था, बट आई डिडंट नो कि वो एक्सरसाइज में है। कितने प्रॉब्लम्स को इंसान याद रखेगा, करेक्ट। सो क्या करेंगे, यू कैन गो फॉर एनीथिंग एनी हाउ। आप जिसको भी यू चाहे ले लो, जिसको भी वी ले लो। मैं इसे फर्स्ट लेता हूँ, इसे सेकंड, बिकॉज इंटीग्रेट ऑफ e raised to 2x is much better than doing sin x or cos x. Correct. So sin x as it is, integral of 2x dx minus integral of d by dx of sin x
इंटीग्रल ऑफ e रेस टू 2x dx इंटू dx, करेक्ट। अब इसके लिए अगर मैं करूं तो क्या होगा कि sin x एज इट इज, इसका इंटीग्रल होगा, सॉरी इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो e रेस टू 2x बाई 2 माइनस, यहां पे आप ध्यान से देखो तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, ये हो जाएगा अगेन e रेस टू 2x बाई 2 dx। So this will become e raised to 2x sin x divided by 2 minus 1 by 2 outside, और वापस से लगेगा क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। So cos x as it is integration of e raised to 2x dx minus d by dx of cos x integration of e raised to 2x dx curly bracket close dx and square bracket भी close, है ना। आई ब्रिंग दैट अप ओवर हियर, अननेसेसरी वहां पे इतनी छोटी छोटी चीजें लिखने की मजा नहीं आएगा। लेट्स डू इट दैट ओवर हियर, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सो क्या होगा, एक स्टेप के लिए क्यों रहते हैं। सो e रेस टू 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स, e रेस टू 2x का e रेस टू 2x बाई 2, सिंपल। एक काम करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं अभी, फिर बाहर निकालेंगे। माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। सो ई रेस टू 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई 2, अंदर दे दो इसे, चलो अब ब्रैकेट खोल के, 1 बाई 4 e raised to 2x cos x minus 1 by 4 e raised to 2x sin x dx। एंड इफ यू ऑब्जर्व तो ये हमारा इंटीग्रल है, यहीं से तो स्टार्ट किया है ना। सो I इक्वल्स टू e raised to 2x by 2 sin x minus 1 by 4 e raised to 2x cos x minus 1 by 4 I. Bring it over the other side. So I plus 1 by 4 I is equals to, let me take e raised to 2x common. So this will be 1 by 2 sin x minus 1 by 4 cos x. यहाँ पे 4 plus 1 5 I by 4। अब यहाँ से ना मैं 4 भी कॉमन निकाल लेता हूँ, देखो कैसे है। तो e raised to 2x by 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x minus cos x। ये 4 और 4 कट, तो I की वैल्यू आएगी e raised to 2x by 5 2 sin x minus cos x। और मैंने कहा था कि फॉर्मूला के लिए चेक करना, तो फॉर्मूला के लिए आपका क्या बनेगा, e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चेक करो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, e रेस टू 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 1 5 इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx। ये आपकी फॉर्मूला है e रेस टू ax साइन bx dx की। ऐसी सेम फॉर्मूला कॉस में भी है, उस वक्त भी कहा था, करेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला। आज ये एकदम करेक्ट लिखिए। दैट डे मे बी आई हैव रिटन द सेम थिंग बट आई वाज नॉट श्योर एट दैट मोमेंट, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये सॉल्व करना, तो आपको पता चल जाएगा। वी डिड इट एंड वी गॉट टू द नो, करेक्ट। सो जरूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम हम फॉर्मूला से ही करें, हमें ये कंसेप्ट से भी ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला तो हायर स्टैंडर्ड के लिए है या फिर फॉर एमसीक्यू, आप इस फॉर्मूला का एमसीक्यू के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, करेक्ट। सिमिलरली कॉस में भी आती है, उसमें भी ऐसा ही कुछ आएगा, e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx, बट बीच में शायद प्लस आएगा, वो भी चेक करना हो तो कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लो, e रेस टू 2x इंटू cos x, दैट विल प्रोवाइड अस कि किस तरह से हमारा वो आंसर आना चाहिए, है ना। बट दैट यू पीपल कैन डू, आई नो। सो फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे। एक और क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज के अंदर, एंड विल ट्राई टू फिनिश इट and then we can easily say that our exercise is over. MCQ as usual I will left it for you, don't worry। MCQ दोनों बहुत easy है। It's given sin inverse 2x upon
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो, अब ऐसी सिचुएशन में आप कभी सोचोगे कि मैं इस पूरे को u ले लूं और 1 को v ले लूं, 1 इन द सेंस इसके साथ प्रोडक्ट में लिखेंगे वो नहीं, क्यों? बिकॉज इट बिकम्स वेरी मच कॉम्प्लिकेट। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू tan थीटा, जिससे हमें मिलेगा dx इक्वल्स टू tan थीटा की जगह पे आएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रल में शांति से पेशेंटली पुट करेंगे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह पे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अगर और थोड़ा गौर से देखो तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 कॉमन और थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई गेस वी डिड दिस प्रॉब्लम टुडे। x इंटू sec स्क्वायर थीटा, x इंटू sec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करना है। आई विल जस्ट राइट सिंपल वन स्टेप, थीटा एज इट इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा कर्ली ब्रैकेट डी थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना भूलना नहीं, अब खत्म ही कर देते हैं। चलो, सो थीटा sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा माइनस tan थीटा डी थीटा। याद आया, रिकॉल हुआ? देखो tan थीटा log sec log cosec की बात की थी हमने यहाँ पे, है ना। सो सी tan थीटा x में है तो आई प्रीफर टू गो विथ sec, है ना। सो 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 टाइम्स log sec में हमारी साइन चेंज नहीं होती है तो आई विल गो फॉर sec थीटा प्लस c। लेकिन यहाँ पे तो छोड़ नहीं सकते इसे, क्यों? क्योंकि हमें तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। क्वेश्चन तो x में दिया है ना, क्वेश्चन थोड़ी ना थीटा में, वो तो हमने कन्वर्ट किया थीटा में। अब इसे थीटा में लाने से, थीटा से tan में कैसे, अरे x में कैसे ले जाएंगे, तो 2, अगर x tan थीटा है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, tan थीटा हो जाएगा x माइनस 2 टाइम्स log मॉड्यूलस। पहले शांति से काम करते हैं कि sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा होगा, क्यों tan स्क्वायर थीटा, x रख दो ना इसको, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो sec थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो इट विल बी log मॉड्यूलस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज अवर आंसर। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व। अब अगर सोचो आपने ये sec थीटा की जगह cos में लिखा होता तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, फिर आपको cos में कन्वर्ट करना पड़ता कि भाई x जो है वो sin tan थीटा है तो उसका cos थीटा क्या आता, तो आप लोग जाते कि भाई चलो ट्राइंगल ले लो, है ना, ये आपका एंगल, सो tan थीटा है यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो फिर ये क्या आता, तो कि भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, एक मिनट, सॉरी नहीं प्लस ही आएगा, ये तो हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस टू साइड्स, माय बैड, प्लस ही आएगा बराबर। फिर भी एक बार देख लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस डेफिनेटली tan थीटा की वैल्यू x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, है ना, अननेसेसरीली कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि अगर मैंने cos थीटा लिया होता तो अब cos थीटा की फॉर्मूला क्या आती, व्हाट इज द फॉर्मूला, तो क्या cos थीटा होता आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको लिखना पड़ता, तो वही हुआ ना, देखो, बट उसके लिए साइन चेंज होकर प्लस हो गई होती। अब इवेंचुअली इसे ऊपर ले जाओगे तो माइनस की साइन बाहर लानी है, तो बेटर ना सेक लिख के इजीली खत्म करे, tan के साथ रिलेट इजीली हो जाता है, कॉस के लिए सोचना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। रही बात आपके एमसीक्यू की, तो बोथ ऑफ द एमसीक्यू आर वेरी इजी। लुकिंग 23, i इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स क्यूब dx। अब ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऐसा फील होगा कि अरे ये तो कहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे वगैरह वगैरह, तो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस कि लेट कर लो पहले एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, यानी हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो अब आपको इंटीग्रल बाय पार्ट्स मिलेगा, कैसे, तो क्या x स्क्वायर dx की जगह पे dt, क्योंकि 1/3 बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा ई रेस टू टी। अरे नो बोलो, यहाँ पे आपको इंटीग्रल बाय पार्ट्स की जरूरत ही नहीं है ना,
तो e रेस टू टी का इंटीग्रल होता है e रेस टू टी डिवाइड बाई 3 एज इट इज प्लस सी, सो e रेस टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी. लेट्स सी आंसर है ऑप्शन यस डेफिनेटली पहला ही ऑप्शन है 1/3 e रेस टू एक्स क्यूब प्लस 3 सी, सॉरी आ गया है ना. रही बात इसके बाद वाले एमसीक्यू की, तो मैं उसमें भी आपको हिंट दे देता हूँ. ये आपका अगर बाकी हो तो प्लीज रिवाइंड करके आप लोग कॉपी कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. नेक्स्ट 24th वाले एमसीक्यू में दिया हुआ है, अरे ये तो बहुत इजी है, i इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स सेक एक्स इंटू 1 प्लस 10x dx. अब आप सोचोगे ये इजी कैसे है सर, हम इसमें कैसे सेट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 10x तो कभी आएगा ही नहीं, लेकिन बाहर sec x तो है ना, तो यू कैन गिव दिस sec x इनसाइड, तो ये हो जाएगा sec x प्लस sec x 10x, और डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है sec x 10x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ sec x. तो आपका आंसर आएगा e रेस टू sec x प्लस c. ये वाला ऑप्शन ए है, इसमें ऑप्शन नंबर बी है e रेस टू x sec x प्लस c. So this is how we are supposed to solve this kind of questions, correct? So make sure कि आप properly सारे solve करो. I did whole exercise, maybe 1 or 2 problem hardly मैंने आपको करने के लिए दिए हैं. I did whole exercise for you people, correct? And I hope कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी. And if you do understand it properly, then please press a like button, जिससे मुझे feedback मिले कि आप तक मेरे जो टीचिंग मेथड है वो आप तक पहुंच रही है. यू पीपल आर गेटिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ प्रॉपर वे. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.